अरे भैया टाइम बताना कितना हुआ। टाइम टाइम को छोड़ो सर, भावनाओं को समझो। इस वॉच की भावनाओं को समझो। हर एक इंसान जो दुनिया में है उसके पास ये वॉच है। कम से कम जिंदगी में एक बार तो यूज किया होगा। यूज नहीं भी किया है तो कम से कम घर पे रखा हुआ होगा। कुछ भी नहीं, कम से कम देखा तो जरूर होगा। शायद ये एक चीज है जो हर एक इंसान ने देखी, ऑफ कोर्स आईने के अलावा, बट हाँ देखी हो। तो इसकी भावना को समझ रहे हो कि इतना पॉपुलर होने के बावजूद कोई इसके बारे में नहीं जानता है, कि ना जाने कि भाई ये काम कैसे करता है, ना जाने कि इसके कितने टाइप्स होते हैं, और ना जाने और क्या क्या। So today's video is dedicated to this amazing thing which tells us how is time passing by. And also because a lot of students ask me, how do watches work, sir? Please tell us. That also you said everything, now you're not telling this. So that's why we're making this video as well. So welcome to the How Do series. We're going to talk about how do watches work. So do not forget to hit the like button, share this video, subscribe to the channel right now, and leave us a comment on what other topic or what other object you want us to make a video on. How does that object work? So without any ado, let's go for the topic now. There are basically three types of watches. और पहला टाइप है मैकेनिकल वॉच। मैकेनिकल वॉच में जितना भी बोलना चाहो बहुत कम है, क्योंकि इसका जो प्रोसेस है काफी कॉम्प्लिकेटेड है। तो आई ट्राई टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल। मैकेनिकल वॉचेस को ऑफकोर्स जो 90s के 2000 के किड्स होंगे उनको जरूर पता होगा क्या होता है। तो मेक इट मच मोर सिंपल। उसमें होता क्या था कि यू ऑल नो दैट इन एवरी सिंगल वॉच यू विल फाइंड अ वेरी स्मॉल क्राउन जो वॉच के बाहर निकला होता है, उसको आप घुमाते हो टू सेट द टाइम। मैकेनिकल वॉचेस में जो क्राउन वाली पीस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पीस है। ये करती क्या थी, जैसे आपके बचपन में आपको एक छोटी गाड़ी मिलती होगी जिसको आप ऐसे खींचते थे और जब छोटे थे वो अपने आप चलने लग जाती थी। अदरवाइज यू यूज्ड टू की द टॉयज एंड वंस यू की इट अप वो अपने आप आगे ऐसे ताली मारते हुए तो कुछ ना कुछ करते हुए आगे बढ़ जाती थी, राइट। सो व्हाट यू यूज्ड टू डू इज यू की इट एंड इट स्टार्टेड मूविंग। Imagine the same thing happening inside a mechanical watch where this is the key. The crown is the key जिसको आप रोटेट करते हो और अंदर एक स्प्रिंग होती है जो वाइंड होती जाती है और जब आपने इसे छोड़ दिया फिर वो स्प्रिंग धीरे अनवाइंड होती जाती है और जब वो अनवाइंड होती है आपकी वॉच चलने लग जाती है। इंस्टेड ऑफ द टॉय मूविंग आपकी वॉच चलने लग जाती है। Now that is how beautiful the mechanical watches were. और ये जो unwinding थी वो it could take somewhere about 2 to 3 days or sometimes it could take 10 days also for a highly efficient watch, and that's how amazing it is. तो इसका complicated part तब आता है जब आप वॉच के अंदर घुसते हो। The moment you enter into a mechanical watch you will find just gears and springs and complex things and everything. So we should really appreciate the efforts the craftsmen here put. It's really great, man. It's really effortless. The way it looks, it's something way beyond it has come out from, right? It's amazing. So what happens here is the moment it starts unwinding, the energy stored in that unwinding, which is slowly released, it's transferred to a set of gears and other parts, and few of these gears handle the second hand, few of these gears handle the minute hand, and few of these gears handle the hour hand. And due to a very simple and sometimes a complicated mechanism, the speed of all these hands are altered. तो जैसे सेकंड हैंड सबसे ज्यादा तेज घूमता है, फिर मिनट और उसके बाद सबसे स्लोएस्ट आपका आर हैंड घूमता है। तो ऐसे बहुत ही वेल बैलेंस तरीके से पूरी की पूरी मैकेनिकल वॉच विद एफर्ट ऑफ gears and all the mechanical energy, it starts working, right? How beautiful the mechanical watch is. Now the second type of watch we're gonna talk about is going to be much more even interesting than that. So let's get into that now. आप लोगों ने ट्यूनिंग फॉक के बारे में तो सुना ही होगा। हमारे स्कूल्स में एक्सपेरिमेंट्स होते रहते थे और ये वही फॉक है जिस पे आप ऐसे मारते हो फिर टिंग करके आवाज आती है और ये बुर करके आवाज ऐसे वाइब्रेट करते रहता है ना। That's what a tuning fork is. Now imagine this tuning fork being inside your watch. Yes, exactly that's how the quartz watch works. That's the second type of the watch people, the quartz watch. इसमें होता है क्या है बेसिकली, ये आपके वो डिजिटल वॉचेस है या तो बैटरी पावर्ड वॉचेस है। मैकेनिकल वॉचेस में आपको बैटरी डालने की जरूरत नहीं होती है। क्वार्ट्ज वॉच में आपको डालना होता है बैटरी, क्योंकि इसमें आप घुमाकर कुछ कर नहीं पाओगे, आपके मैकेनिकल एनर्जी स्टोर नहीं होने वाली है, गियर्स कुछ भी नहीं मूव होने वाले हैं। इसमें होता क्या है, समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, द बैटरी इनसाइड द क्वार्ट्ज वॉच एक्चुअली पावर्स अ क्वार्ट्ज क्रिस्टल,
और जो क्वार्ट्ज का क्रिस्टल है इट इज इन द शेप ऑफ अ प्रॉपर ट्यूनिंग फॉर्क। ट्यूनिंग फॉर्क के शेप में होता है और ये ट्यूनिंग फॉर्क का शेप क्या करता है, जैसे ही बैटरी आपने डाली, बैटरी पास करती है आपकी उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू दी ट्यूनिंग फॉर्क, और ये जो ट्यूनिंग फॉर्क है क्वार्ट्ज क्रिस्टल का वो वाइब्रेट करना स्टार्ट हो जाता है। और ये वाइब्रेट करता है, यू विल नॉट बिलीव व्हेन आई से दिस वाइब्रेट्स एट 32,768 टाइम्स, नॉट इन एन आवर, not in a minute, and definitely not in a day. It vibrates or it oscillates 32,768 times in a second. Imagine creating vibration at a frequency of 32,768 hertz. That is absolutely crazy, isn't it? तो जब हर एक सेकंड में, मतलब वॉच को पता कैसे चलता है कि एक सेकंड हो गया है? When the quartz crystal finishes 32,768 vibrations, that's when the watch understands that 1 second is up. तब quartz crystal से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है आपके सर्किट में, और सर्किट कमांड देता है आपके सर्किट बोर्ड को कि अब सेकंड के हाथ को घुमाओ, टक 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 टक। That's how crazy it is. तो अगर आप इसे ध्यान से देखोगे, यू कैन एक्चुअली डिफरेंशिएट बिटवीन अ क्वार्ट्ज वॉच एंड अ मैकेनिकल वॉच। कैसे बता? मैकेनिकल वॉच का जो मूवमेंट होगा वो बहुत स्मूथ होगा, वो ऐसे स्मूथ मूव हो रहा होगा सेकंड के हैंड। लेकिन आपको जो क्वार्ट्ज का वॉच होगा, अगर आप देखोगे भी, ये वो वॉचेस है जो आवाज करती है, टक टक टक। तो अभी आपके आसपास जो भी वॉच होंगे वो मोस्टली क्वार्ट्ज वॉचेस होंगी, और आपको दिखेगा भी और आप देख भी पाओगे कि वो सेकंड का जो हैंड है वो धीरे 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 ऐसे मूव हो रहा है। तो कैन एक्चुअली डिफरेंशिएट बिटवीन अ मैकेनिकल वॉच एंड अ क्वार्ट्ज वॉच, और ये एक तरीका भी है जिससे फाइंड आउट होता है कि कौन सा रियल वॉचेस हैं, कौन से डुप्लीकेट वॉचेस हैं, मैकेनिकल और क्वार्ट्ज को कंपेयर करते हुए। अब बात आती है आपकी थर्ड एंड द फाइनल वॉच की, विच इज माय फेवरेट सेट ऑफ वॉच। आई एम प्रीटी श्योर इट विल हेल्प यू आल्सो अ लॉट, एंड यू विल बी क्रेजी अबाउट इट, बिकॉज दैट्स वन ऑफ द वॉचेस व्हिच आई रिसेंटली बॉट एंड इट वाज लाइक amazed. So yeah, I think we should look into that now. Now, mechanical watches. That is the third type of watches, and I think mechanical watch is a mixture of, no, not mechanical watch. See, I said it again. It's an automatic watch, yeah. So automatic watch is a mixture of mechanical watch and intelligence, or I should say engineering. It's amazing how it works. Let me tell you, because I can't keep it in myself. But how it works is, so you remember in the case of mechanical watches, saying it right, it's not automatic, yeah, mechanical watches, you need to turn the crown, of your watch so that the spring inside it gets loaded, it gets winded up. यहाँ पे वो लोड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे with such brilliance आपके वॉच के अंदर एक छोटा सा रोटर होता है, वो रोटर घूमता है फ्रीली। कैसे? जब भी आपका हाथ का मूवमेंट हो, whenever you move your hand or whenever you move the watch, the rotor moves on freely, और ये क्राउन घुमाने का जो काम होता था, जो उसके अंदर के स्प्रिंग को लोड करता था, वो ये रोटर कर देता है। रोटर विद अ सेट ऑफ स्पेशल गियर्स स्टार्ट्स वाइंडिंग द स्प्रिंग इनसाइड द वॉच। अब जरूरी नहीं है कि रोटर उल्टा घूमेगा तो फिर वो अनवाइंडिंग हो जाएगी, वो अनलोड हो जाएगा, ऐसा नहीं है। रोटर कोई भी डायरेक्शन में घूमे, गियर्स ऐसे सेट हैं कि आपका जो स्प्रिंग होता है अंदर में वो लोड होते जाए, विंड होते जाए, वाइंड होते जाए, बिल्कुल। And that is how beautiful it is. So you really do not have to actually keep rotating the crown to tune it in or wind it in. You just need to keep walking or keep moving your hand, and whenever you move your hand, the load will keep on creating. तो जब तक आप ऑटोमेटिक वॉच पहनोगे, जब तक वो आपके हाथों पर होगा, तब तक आपकी वॉच आराम से चलती जाएगी, और जब तक वो पूरा लोडिंग कंप्लीट नहीं होगा, वो कभी आपकी वॉच रुकेगी नहीं। इट नेवर नीड्स अ बैटरी, इट डज नॉट नीड एनीथिंग। जब तक आपकी सांसें चलती रहेंगी, तब तक वॉचेस भी चलते रहेंगे। दैट्स व्हाई आई लव द ऑटोमेटिक वॉचेस। Do let me know which watch do you love, and let us know in the comment section ki was it quartz or was it mechanical or was it automatic, and do let us know ki which watch are you currently using. I am a very avid watch user and I love watches a lot. So I have the quartz, I have the automatic, but I do not have the mechanical. My parents had it, but now I don't think they have it now. But since I'm a very avid watch lover, I think I will get a mechanical watch also, because nostalgia. What do you say? So we'll see you guys in the next how to series, and do let us know which other topic you want us to make and how to video on in the comment section. I will definitely pick it up. So until maybe next time, people, this is Abhishek signing off for today. Enjoy your life, stay home, stay safe, and stay strong, and I'll catch you guys in the next one. Peace.